Okay, so hello everyone. Namaskar. So welcome to the next lecture of solution. This will be our third lecture, and today we will be learning about solubility. We'll be learning about solubility and how different factors affect solubility. Okay, and finally we'll be talking about Henry's law, one of the most important topic. Okay, one of the most important topic, be it in terms of boards or be it in terms of your entrances. Alright, so let's begin with today's lecture. Today we will be learning solubility. 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 Now what is solubility? Anybody? What is solubility? Solubility. In your book it is written in this way. Solubility is the amount of substance. Is the amount of a substance. Amount of a substance, we can call it a solute, okay? Amount of a substance or solute that is present in a particular solution, in a particular solvent. Not solution big. Solubility is the amount of, it is the maximum amount. It is the maximum amount of a substance that is present in a particular solvent. ठीक है? For example, ये last class में मैंने already तुम्हें बताया था last lecture में that what is a saturated solution. एक saturated solution क्या होता है जिसमें maximum amount of solute present होता है, right? तो solubility को भी in terms of वो maximum amount of solute के terms पे हमने इसको define किया. It is the maximum amount of solute that is present in a given solvent. ठीक है ना? एक given solvent में कितना maximum solute हम लोग डाल सकते हैं, that is called the solubility. ठीक है? फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मेरे पास वाटर है, वाटर यहाँ पे solvent है, H2O is a solvent. ठीक है? तो इसमें सपोज 1 लीटर हमारे पास पानी है. 1 लीटर वाटर. ठीक है? 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम NaCl डाल सकता हूँ. ठीक है ना? कितना ग्राम NaCl मतलब सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कितना कॉमन सॉल्ट डाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड solubility. मैक्सिमम कितना सॉल्ट हम लोग डाल सकते हैं to make it a saturated solution. What is a saturated solution? A saturated solution is a solution that can no longer have any more solute from the surroundings. ठीक है ना? और solute जो नहीं ले सकते उसी को अपन बोलेंगे saturated solution. तो इसके बाद आता है तुम्हारा कुछ factors, the factors that affect solubility. Now, what are the factors that affect solubility of a solution? I'm rubbing this, okay? The factors that affect solubility of a solute. Okay, चलो देखते हैं. अलग-अलग factors होते हैं actually. चलो factors that affect solubility of a substance. Now there can be different factors, alright? There can be different factors depending on the nature of solute and solvent, depending on temperature, depending on pressure. Alright, first of all we'll try to understand what happens if a solid is mixed. If a solid is mixed in a liquid solvent, okay? Solid in a liquid solvent. Solid in a liquid solvent. ठीक है? Try to understand. It's very simple, okay? Solid in a liquid solvent. कोई solid solute है हमारे पास, solid का solute है और liquid का solvent है. ठीक है ना? तो कौन से factors इनके solubility को change कर सकता है? ठीक है ना? कौन से factors इनके solubility पे change ला सकता है? ठीक है? For example देखते हैं, suppose मेरे पास पानी है, मेरे पास water है, and water पे मैं at max, ठीक है ना, saturated solution बनाने तक मान लेते हैं 20 ग्राम शुगर डाल सकता हूँ. 20 ग्राम शुगर डाल सकता हूँ पानी के साथ. ठीक है? और 20 ग्राम शुगर डालने पे ये सैचुरेटेड हो जाता है. ठीक है ना? सैचुरेटेड हो जाता है. फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड, सपोज मैं वाटर के जगह पे मैं अगर मिल्क ले लूँ, मिल्क, ठीक है ना, और मैं वापस से इधर में चीनी डालूँ, तो चीनी यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं ना. सपोज मैं यहाँ पे 30 ग्राम शुगर डाल पा रहा हूँ. ठीक है? पानी पे 20 ग्राम, मिल्क पे 30 ग्राम. इससे क्या पता चलता है? मतलब तुम सोल्यूट कौन से सॉल्वेंट में डाल रहे हो उस पे भी मैटर करता है. मतलब सॉल्वेंट का
नेचर, ठीक है ना, कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सोल्यूट भी अगर कोई दूसरा होगा तो उसका अमाउंट अलग अलग होगा डिसॉल्व होने का, ठीक है। मतलब अगर मैं मानूं लाइक सपोज कोई एक मैं पोलर सोल्यूट ले लेता हूँ, पोलर सोल्यूट जैसे कि NaCl, पोलर सोल्यूट जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये किसके साथ डिसॉल्व होगा, कोई एक पोलर सॉल्वेंट में होगा, पोलर सॉल्वेंट जो कि है तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट। H2O को हम पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, राइट। अरे पोलर मतलब क्या है, तो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक तरफ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्जेस, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो NaCl और H2O प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरे तरफ अगर हम लोग देखेंगे नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CCl4, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा तुम्हारा बेंजीन C6H6। now try to understand this part ना, NaCl H2O में प्रॉपर्ली घुल जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम से, ठीक है ना, लेकिन NaCl बेंजीन में नहीं घुलेगा, ठीक है ना, बात को समझो। NaCl is not going to dissolve with benzene, इसके साथ कोई रिलेशन बनेगा नहीं क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो भी है सिमिलर नहीं है। यहाँ में क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, ठीक है ना। पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही होगा डिसॉल्व, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है CCl4, ये पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होने वाला है, वो नॉन पोलर है, ये पोलर है, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट फिर नॉन पोलर सोल्यूट के साथ नहीं, आई मीन पोलर सॉल्वेंट के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ हो सकता है कुछ ट्रेमेंडस कंडीशंस में, पर जनरली नहीं दिखता है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि ये जितना इजीली डिसॉल्व हो रहा है इतना इजीली डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होता है जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, ठीक है। फिर से याद करा दे रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, ठीक है ना, मतलब कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है C6H6 भी कुछ लिक्विड ही है, ठीक है। अपन अभी देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, solubility of solid in liquid। बार बार मैं solid in liquid क्यों बोल रहा हूँ, गैस का नेचर अलग हो जाएगा, राइट। तो पहले solid in liquid समझ लेते हैं, ठीक है। solubility of solid in liquid, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है solubility में, वही लेते हैं। फिर से पानी ले लिया हमने एक कंटेनर में, वाटर ले लिया, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट है। ऊपर से मैं इसमें क्या डालूंगा, मैं कुछ शुगर क्रिस्टल्स डाल दूंगा, ठीक है, शुगर क्रिस्टल यहाँ में डाल दिया मैंने शुगर क्रिस्टल, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करने के लिए मुझे स्टीर करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ स्टीयरिंग अगर मैं इस पे अगर नीचे से हीट करता हूँ, ठीक है ना, नीचे से अगर हीट करता हूँ तो क्या होगा, खुद ब खुद ये शुगर डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। बात को समझ रहे हो, जब पानी ठंडा था, शुगर डाला मैंने, तो मुझे उसको स्टीर करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, तब जाके शुगर और पानी मिक्स होगा और बनाएगा शुगर सॉल्यूशन। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो स्टीर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास मान लेते मेरे पास स्पून नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने नीचे से इसको हीट कर दिया। हीट करने पे क्या हुआ, अंदर में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये जो भी सॉलिड था शुगर, ठीक है ना, सॉल्यूट जो भी था वो धीरे धीरे मिक्स होगा इसके साथ, लिक्विड के साथ, जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट, क्यों मिक्स हो रहा है, लिक्विड बोल रहा हूँ ना, लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिक्विड जब हम लोग एक लिक्विड के बारे में बात करते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस खाली रहता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग उस पर सोल्यूट डालते हैं, ठीक है ना, तो वो सोल्यूट क्या करता है, वो उन पर्टिकुलर स्पेस को फिल कर लेता है, ठीक है ना, वो उन पर्टिकुलर स्पेसेस को फिल कर लेते हैं एंड और फाइनली क्या होता है, एक सोल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है। जब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसका फील ऐसा है, देखो जब वो स्पेस कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है ना, एक सॉल्वेंट में जितना भी स्पेस था, ठीक है ना, वो जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, इसके बाद तुम अगर इस पे सोल्यूट डालोगे तो वो कैसे मिक्स करेगा, राइट। सो दैट्स द सीन हियर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है।
हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, solubility of sugar खुद ब खुद क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया। आप तो समझ रहे हो, लेकिन तो हमें क्या करना पड़ता, हमें स्टीर करना पड़ता, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट करके क्या हुआ, solubility ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, और एक पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर वी हैव प्रेशर एज वेल। प्रेशर, अब ये थोड़ा सा अलग सा सीन है। प्रेशर जब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है ना, तो प्रेशर का कुछ खास रोल होता नहीं है, ठीक है ना, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। अरे गाइस को क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है, अरे खुद सोचो, सॉलिड के पास कुछ खास शेप तो होता नहीं है, तो तुम उसको प्रेशर अगर डालो, आई मीन उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, सॉलिड के पास एक डिफाइंड शेप होता है, राइट, एंड देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो उसको जब तुम लिक्विड के साथ मिक्स करोगे तो इंटरमिक्सिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से मिक्सिंग नहीं हो जाता है, ठीक है ना, इंटरमिक्सिंग काफी कम दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब सीन क्या है, सॉलिड ऑलरेडी पैक्ड है, डिफ्यूजन मतलब लिक्विड उसके अंदर घुसेगा या फिर ये किसी लिक्विड में घुसेगा विद इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे, टफ होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर का सिग्निफिकेंस काफी कम होता है व्हेन इट कम्स टू solubility of solid in liquid, ठीक है ना। अगला फैक्टर जब हम लोग देखेंगे solubility of a gas in liquid, तब ये चेंज हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर भी इसी पे है, solubility of gas in liquid पे, मतलब इस पे हमारे भैया हेनरी भैया ने कुछ लॉ दिया है हमें, उसको हमें ध्यान से देखना है, ठीक है ना, कि कैसे solubility इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ये सॉल्यूट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, तो solubility of गैस इन लिक्विड पे जाते हैं, गैस इन लिक्विड, ठीक है, वही टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी अभी देखेंगे क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, हम रबिंग दिस, ऑलराइट, ओके। क्या था पहला, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो मान लेते हैं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में इसमें मेरे पास पानी है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व करके रखा है, ऑक्सीजन के गैस डिसॉल्व करके रखा है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको हीट करूं नीचे से, ठीक है ना, तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के जो गैस के पार्टिकल्स समहाउ मिक्स्ड थे, ठीक है, सोलवेंट के अंदर, वो क्या करेंगे, वो एस्केप कर जाएंगे, वो भाग जाएंगे हीट करने, वो निकल जाएंगे, ठीक है। नीचे से जब हम लोग एनर्जी लगाएंगे, ये क्या करेगा, ये बाहर एस्केप करके चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, द solubility of gas, solubility of gas in liquid is decreasing, temperature increasing, solubility decreasing। कब डिक्रीज हो रहा है solubility, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। अगला में चलते हैं, प्रेशर पे जाते हैं, ठीक है, प्रेशर पे क्या होता है देखते हैं, नंबर 2 प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, इस बार सीन अलग होगा, सॉलिड वाला सीन यहाँ पे नहीं दिखता है, ठीक है ना। प्रेशर, ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर है, इसके अंदर मेरे पास एक सॉल्वेंट है और मेरे पास कुछ गैस भी है, ठीक है। अगर मैं अभी इस पिस्टन को ऊपर से अगर पुश करूं, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, राइट, पिस्टन नीचे आ जाएगा, कंप्रेशन होगा, राइट, तो जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे क्या होगा, ये गैस अंदर जाके मिक्स होगा, ठीक है, गैस सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा, जो भी सॉल्वेंट है, बात को समझो, सोल्यूट यहाँ पे गैस है, गैस इज द सोल्यूट हियर, जिसका क्वांटिटी कम होता है, एंड लिक्विड इज द सॉल्वेंट हियर। With increasing pressure, what is happening? You are increasing the pressure. You are increasing the pressure. With increasing pressure, what is happening? The volume is decreasing, isn't it? The volume is decreasing. So eventually, what will happen? The gas is getting mixed. The gas is getting mixed in the liquid solvent, isn't it? So with increase in pressure, the solubility of a gas in liquid will always increase. हमेशा इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी हमें मिलेगा, ठीक है ना। इसी को हेनरी लॉ ने भी बोला है सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में, तुम जितना ज्यादा देखो सोल्यूबिलिटी, हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ने बोला था दैट मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी एज पर द, आई मीन सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली proportional to, solubility of a particular solute is proportional to
is proportional to the partial pressure applied by it. जितना ज़्यादा partial pressure होगा उतना ज़्यादा solubility, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेनरीज लॉ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सब समझ में आ गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये भी समझ में आ गया शायद, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ, हेनरी भैया का लॉ। चलो लेट्स सी व्हाट हैज ही गॉट टू से। solubility, okay, Henry's law. Henry's law. Now what is Henry's law? It states that solubility of a gas या फिर गैस में हम क्या मानेंगे, सोल्यूट। solubility of a gas or solute is directly proportional to the partial pressure, गैस का partial pressure ही होता है, राइट। 11 में पढ़ा था, to the partial pressure of the gas, मतलब समझ रहे हो। Just it states that solubility of a gas is directly proportional, डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर पे। तुम्हारे पास एक लिक्विड है, वो ऊपर में मान लेते कुछ एयर है हमारे पास, ठीक है ना, कितना डिसॉल्व होगा उसके अंदर ये डिपेंड करेगा जो भी पर्टिकुलर गैस का, बट जो भी पर्टिकुलर गैस है ऊपर में, ठीक है, उसका प्रेशर जितना भी होगा, उसका पार्शियल प्रेशर जितना भी होगा, मोर द पार्शियल प्रेशर मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी। बात करेंगे इसमें और डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कैसे हो रहा है। इन अदर वर्ड्स क्या होता है ये, इन अदर वर्ड्स partial pressure of the gas above liquid surface, partial pressure of the gas above liquid surface is proportional to the mole fraction, of the gas dissolved in the solvent, ठीक है। It states that solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, in other words partial pressure of the gas above liquid surface, ठीक है ना, is proportional to the mole fraction of the gas dissolved in the solvent, ठीक है। कैसे लिखेंगे अभी मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, P is proportional to x, ठीक है, P is proportional to x। x क्या है यहाँ पे, x क्या था, x मोल फ्रैक्शन था। इससे पहले मैंने समझा दिया था व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था मोल फ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस केस में क्या है, गैस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर प्रेशर, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर P is proportional to x। Now try to understand क्या है, P is proportional to x। अगर मैं ये proportionality साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, proportionality कांस्टेंट, वो क्या होगा, P is equal to kh into x। अब kh क्या है, kh proportionality कांस्टेंट है जिसका नाम दिया गया है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट। इसका भी काफी बड़ा रोल है सोल्यूबिलिटी के केस में, ठीक है ना, हेनरीज कांस्टेंट का, ठीक है। पहले तो देखते हैं हेनरीज कांस्टेंट, P is equal to kh into x, ये है हमारा हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके कुछ सम्स भी करेंगे लास्ट में हम लोग। फिलहाल ये याद रखो, P is proportional to x, x is the mole fraction of the solute present in the solvent, present in the solution, and P is the partial pressure of the gas, ठीक है। That is P is equal to kh into x, which is called as Henry's constant। यहाँ से अगर मैं Henry's constant के लिए अगर निकालूं, kh will be equal to, यहाँ पे देखते हैं, kh will be equal to P अपन x, x को इधर ट्रांसपोज कर दिया, P अपन x हो गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, राइट, तो सिर्फ प्रेशर का यूनिट होता है ऑन द राइट हैंड साइड। तो इधर क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा।
ठीक है, जो भी प्रेशर का यूनिट है वही बनेगा हेनरी का यूनिट, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट। यूनिट ऑफ pressure and Henry's constant will be same. Henry's constant will be same. Okay, so ठीक है, तो जैसे कि प्रेशर का यूनिट क्या क्या हो सकता है, पास्कल हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, ठीक है ना, तो कन्वर्जन थोड़ा बहुत वहां पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा KH, KH इज इक्वल टू P/X, ठीक है। अभी एक चीज देखो यहाँ से एक चीज देखो, हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, हेनरीज लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब x के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी गैस का अगर हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, उसका सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में काफी कम होगा। और किसी भी गैस का अगर हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, कम है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी हाई होगा, ठीक है। काफी इजी है ना। इसका एक टेबल भी है तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है, टेबल नंबर 2.2, ठीक है, जहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स के बारे में दिया गया है, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, कुछ गैसेस के बारे में दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हम दो तीन ले लेते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब ये इनका हेनरीज कांस्टेंट कितना है देखते हैं, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ किलो बार, ठीक है, किलो बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज, अलग अलग गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा, बट एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट का। तो एट टेम्परेचर हम लोग लेंगे 293 केल्विन, मतलब कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। हीलियम का, ठीक है, हीलियम का हेनरीज कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 145 होता है इन टर्म्स ऑफ किलो बार, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस का करीब तुम्हारा 70 होता है, 69 पॉइंट समथिंग होता है, चलो 70 मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हो जाता है तुम्हारा 35। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम लोगों को, अगर कोई बोलता है कि कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, हीलियम का? नहीं, हीलियम का कम होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम का हेनरीज कांस्टेंट बड़ा है, 145 कंपेयर टू ऑक्सीजन का 35। Try to understand Henry's constant is inversely proportional to the solubility, to the mole fraction, ठीक है ना, x मोल फ्रैक्शन काई से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी, इन तीनों के केस में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा ऑक्सीजन का। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक दो क्वेश्चन पिछले सालों में जो आया है वो भी बताऊंगा, ठीक है, असम बोर्ड में जो भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले एक काम करते हैं, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, लिमिटेशंस के बारे में पूछा जाता है, चलो वो पहले देख लेते हैं, हम रबिंग के साथ, ओके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशंस। कहाँ पे हेनरीज लॉ लागू होता है, हेनरी का लॉ का एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन मिक्सिंग ऑफ CO2 in बेवरेजेस। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है उसके अंदर? CO2 होता है ना, कैसे मिक्स करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, दिस यूज्ड इन मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेवरेजेस
by sealing the cap, by sealing the cap under high pressure. जब भी कोई कोक का बोतल हम लोग खोलते हैं तब क्या होता है, कोक का बोतल खोलने पे एक साउंड आता है ना, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग, प्रेशर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है, बाहर का प्रेशर करीब करीब 1 एटमॉस्फेयर होता है ना हमारा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उस बोतल का प्रेशर अंदर में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसको 2 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर 5 एटमॉस्फेयर में पैक करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग खोलते हैं तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ना, खोल देने के साथ साथ अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप होने के टाइम में क्या होता है, वो साउंड भी आता है, बोलो साउंड, राइट, ओके। सो इट इज यूज्ड इन मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेवरेजेस बाय सीलिंग द कैप अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अगला देखो, अगला है तुम्हारा ये सी डाइवर्स लोग, सी में जो गोताखोर होते हैं, जो डाइव करते हैं ना सी के अंदर, तो उनके पास टैंक्स होता है कि नहीं, ऑक्सीजन टैंक्स होता है। ऑक्सीजन टैंक्स में अपन क्या करते हैं, हीलियम मिक्स करते हैं, हीलियम मिक्स करते हैं। इट इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, इट इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स इन देयर ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा, मेरे मुंह इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू अवॉइड बैंस, टू अवॉइड बैंस। बैंस क्या होता है अभी, बैंस एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मेडिकल सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, टू अवॉइड बैंस। बैंस में क्या होता है, देखो कोई भी स्कूबा डाइवर जब नीचे जंप करता है, ठीक है ना, पानी में जंप करता है, नीचे जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, नीचे प्रेशर काफ़ी इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैंने थोड़ा देर पहले मैंने तुम्हें गैसेस का फैक्टर्स बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, है कि नहीं। सोल्यूबिलिटी में हमने क्या देखा, गैस जब भी प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होता है, गैस क्या होता है, गैस डिजोल्व हो जाता है, गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होता है कि नहीं, जब भी प्रेशर बढ़ेगा। वही तो हेनरीज ने भी बोला है कि नहीं। तो जब कोई भी सी डाइवर, ठीक है ना, जब कोई भी सी डाइवर डाइव करता है तब क्या होता है, वो नीचे, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तब क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग टैंक में लेके जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है हमारा ब्लड में। देखो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होना, कम डिजोल्व होना, दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है ना। ज़्यादा डिजोल्व होने से भी प्रॉब्लम होता है, कम डिजोल्व होने से भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होता है बैंस, वो ऑक्सीजन, इसके साथ नाइट्रोजन भी तो होता है एयर में ना, एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन का भी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, ड्यू टू विच क्या हो सकता है, बबल्स फॉर्म हो सकता है हमारे ब्लड के कैपिलरीज में, ठीक है ना। तब क्या होता है, कुछ बबल फॉर्म होता है, तो उसको अपन बोलते हैं बैंस, ठीक है। तो ये नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीलियम मिक्स करते हैं, ठीक है ना, हीलियम मिक्स करते हैं। हीलियम कहाँ मिक्स करते हैं, टैंक में मिक्स करते हैं, सो दैट वो कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। डाइल्यूट होने से क्या होता है, देखो हीलियम का अभी हमने देखा था हेनरीज कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। जो भी सोल्यूबिलिटी जो बढ़ने की वजह से तुम्हें जो प्रॉब्लम होता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, जिसका नाम है बैंस, ठीक है, काफी क्रिटिकल सा होता है ये, ठीक है ना, वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ, टू अवॉइड बैंस we mix, we dilute the क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर बोल देते हैं, we dilute the oxygen cylinder by mixing helium मिक्स करके अपन कॉन्सेंट्रेटेड सिलेंडर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, ताकि कम से कम मिक्सिंग हो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन। ज्यादा मिक्सिंग होने से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अरे पेट में नहीं आ रहा है, क्या क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी दिख सकता है, ठीक है ना, ओके। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और एक एप्लीकेशन है एनॉक्सिया बोलते हैं, वो भी एक मेडिकल कंडीशन ही है। अगर तुम काफी हाइट पे अगर चले जाते हो, ठीक है ना, कोई माउंट एवरेस्ट पे चले गए हो तुम, ठीक है ना, कोई माउंट एवरेस्ट पे चले गए हो, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर घट जाता है, प्रेशर फॉल हो जाता है। अब ये प्रेशर फॉल होने से क्या हुआ,
प्रेशर फॉल होने से क्या होगा, वो भी तो सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट करेगा ना। प्रेशर कम सोल्यूबिलिटी भी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस का सोल्यूबिलिटी, अब जितना कम प्रेशर उतना गैस का सोल्यूबिलिटी कम। इसका मतलब क्या है, गैस का सोल्यूबिलिटी हमारे ब्लड में कम। अगर ब्लड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक भी नहीं जाएगा। अगर ये होता है, इससे भी क्या होता है, इससे भी एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग प्रॉपर्ली सोच नहीं पाते, हम लोग ऊटपटांग चीजें करते हैं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। तो दिस आर एप्लीकेशंस। कार्बोनेटेड ड्रिंक में हाई प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सील कर देते हैं, ठीक है ना। एंड फिर क्या बोलते हैं, बैंस नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम डाल के उसमें, ताकि क्योंकि सोल्यूबिलिटी को कम करते हैं। ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगा तो बैंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और ग्रेटर हाइट्स पे क्या हो सकता है, एनॉक्सिया हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। दिस आर सर्टेन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ साथ लिमिटेशंस भी आता है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लिमिटेशन? लिमिटेशन मैं बताना चाहेगा, व्हाट इज लिमिटेशन? लिमिटेशन मतलब कहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, मतलब हर जगह पे, मतलब यूनिवर्सल लॉ तो ये है नहीं, कहीं ना कहीं ये वैलिड नहीं करता है, राइट। तो लिमिटेशंस कहाँ पे होगा लिमिटेशन? इट डज नॉट होल्ड ट्रू, it does not hold true under very high pressure। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में अगर तुम कोई एक गैस को कोई सॉल्वेंट में अगर डालते हो, क्या हो सकता है, वो गैस रिएक्ट कर जा सकता है, वो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जा सकता है, तो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले सकते हैं, कोई दूसरा रिएक्शन बना ले सकता है। H2O में मैंने ऑक्सीजन मिला दिया, बात तो ऐसे समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ, H2O में मैंने ऑक्सीजन मिला दिया और H2O बन जा रहा है H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। होता क्या है, वो पॉइजनस होता है, राइट। तो रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब द सोल्यूट must not participate, the solute must not participate in any kind of reaction with the solvent। पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना है solvent के साथ। अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो हेनरी लॉ वहां पे वैलिड नहीं रहेगा। Am I clear? Henry's law will not be valid under such condition। ठीक है, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस एंड हेनरीज लॉ। एक सम करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? लेट मी चेक, वेट अ मोमेंट। या कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। चलो एक कार्बन डाइऑक्साइड का ही मिला है क्वेश्चन, चलो करते हैं। Calculate the mass of CO2, carbon dioxide। Calculate the mass of CO2 in 500 ml soda water, in आधा लीटर soda water, in 500 ml soda water, when packed under 2.5 atmosphere, CO2 pressure at 298 Kelvin, given that density of water is 1 gram per milliliter, and Henry's law constant for CO2 in water is, and Henry's constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal, ठीक है, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin। चलो कैसे करेंगे अभी इसको देखते हैं।
ओके, अपन को क्या क्या दिया है, हमें निकालना है मास ऑफ CO2, कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है आधा लीटर सोडा का बोतल में। सोडा का बोतल देखा है शायद तुम लोगों ने, ठीक है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है आधा लीटर वाला बोतल में, ठीक है, ये निकालना है। और तुमको क्या बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पैक किया गया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर है 298 केल्विन, ठीक है। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 500 ml बोला है तो 500 ml में कितना होगा, 500 ग्राम होगा, तो मास कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का। चलो ठीक है। एंड हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल बोला है। हेनरीज कांस्टेंट को पास्कल में दिया है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में दिया है, तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 to the power 8 पास्कल ना -8 पास्कल था, वेट अ मोमेंट, चलो 8 ही था, ओके, एट 298 केल्विन। तो चलो शुरू करते हैं, गिवन से शुरू करते हैं। व्हाट डू वी नो, हेनरीज सॉल्यूशन। तो हेनरीज कांस्टेंट दिया है हमें, हेनरीज कांस्टेंट दिया है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, ठीक है। चलो प्रेशर कितना दिया, प्रेशर CO2 का, प्रेशर दिया है CO2 का तुम्हारा 2.5 atm। इसको अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लिया, 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 into 1.01325 पास्कल भी लिख सकते हैं। कर लिया तो नहीं करने से नहीं, आई मीन यू डोंट नीड टू डू इट, तुम कैंसिल आउट कर सकते हो 10 to the power 5 को, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या था, सॉल्युबिलिटी x। तो हमें प्रेशर पता है, हेनरीज कांस्टेंट पता है, तो x निकल जाएगा हमारा, राइट। x क्या होगा, तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपन हेनरीज कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 divided by हेनरीज कांस्टेंट क्या है, 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। चलो अभी इनको कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से करना, वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। 1.5 into 10 to the power -3 हो जाएगा, 1.5 into 10 to the power -3 पास्कल नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये है हमारा सॉल्युबिलिटी, किसका सॉल्युबिलिटी, CO2 का सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, हमें सॉल्यूशन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, मास पूछा है, कितना मास डिसॉल्व है 500 ml सोडा वाटर में। मोल फ्रैक्शन तो पता चल गया, मोल फ्रैक्शन कितना डिसॉल्व है 1.5 into 10 to the power -3, लेकिन मास नहीं पता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मास भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। मोल फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, xCO2 is equal to, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 is equal to number of moles of carbon dioxide upon number of moles of all the components present। all the components क्या क्या होगा, NCO2 plus water, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मोल्स, है कि नहीं। अब यहाँ में ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने कम होंगे, मोल फ्रैक्शन अगर 1.5 into 10 to the power -3 है तो उसका मोल्स काफी कम होंगे सॉल्यूशन में। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इग्नोर कर देते हैं क्या, चलो कर देते हैं इग्नोर, ओके। आई एम लविंग द क्वेश्चन, ओके। चलो इग्नोर करते हैं थोड़ा सा, ओके। अगर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं तो अपन न्यूमरेटर में लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपन मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना साइड में, सिंस एंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दैट इज व्हाई हमने इसको चेंज कर दिया। फिर मोल फ्रैक्शन का कितना वैल्यू निकला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.5 into 10 to the power -3 निकला था, है कि नहीं, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, वेट अ मोमेंट, ओके, ठीक है, फाइन। 1.5 into 10 to the power -3, we need the mass
We need the mass, isn't it? Mass कैसे निकालेंगे? किसका चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए था ना, उसको एक साइड में रख लेते हैं. Moles of CO2 is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3 into moles of H2O. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5 into 10 to the power minus 3 into moles of water. क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. यहाँ पे कितना दिया था? 500 ml दिया था. 500 ml के लिए मास कितना होगा? 500 ग्राम होगा, है कि नहीं? तो ऊपर में गिवन मास हो गया 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास. H2O का मोलर मास कितना होगा? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 16 plus 2 18. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? वैल्यू कितना आ जाएगा? वैल्यू इसको कैलकुलेट करके देख लेना. मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ. कितना आया है इसका वैल्यू? 4.214 into 10 to the power minus 2. 4.214 into 10 to the power minus 2 मोल आ रहा है. मतलब कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होंगे तुम्हारा एक आधा लीटर सोडा बॉटल में? 4.214 into 10 to the power minus 2 मोल. लेकिन हमें मोल भी नहीं पूछा है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं पूछा है, मोल भी नहीं पूछा है. हमें कुछ और पूछा था. क्या पूछा था? मास पूछा था, राइट? ये बता देता हूँ मैं. मास पूछा था. कैसे निकालेंगे मास? कैसे निकालेंगे? We know NCO2 is equal to mass of CO2 अपन molar mass of CO2. तो अभी इसका वैल्यू तो हमें पता है. NCO2 का वैल्यू कितना है? 4.214 into 10 to the power minus 2 into molar mass को इधर लेके आओ. molar mass of carbon dioxide equal to mass of CO2. अब molar mass कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का? ऑक्सीजन 2 है, 16 2 32 plus 12 44. So 4.214 into 10 to the power minus 2 into 44 is giving us mass of carbon dioxide. तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे. आंसर है 185.4 into 10 to the power minus 2. 185.4 into 10 to the power minus 2 ग्राम. ठीक है, काफी कम होता है. 10 to the power minus 2 ग्राम मतलब क्या? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1.85 ग्राम हो जाएगा, राइट? तो आधा लीटर सोडा में 1.85 ग्राम तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ठीक है, दिस इज अबाउट हेनरी का लॉ. हेनरी का लॉ का एक छोटा सा एग्जांपल. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. कुछ थ्योरी में देखो क्या क्या पूछा जाता है. इसके पहले हमें पूछा गया था हेनरीज लॉ का डेफिनेशन पूछा गया है, एप्लीकेशन पूछा गया है. ठीक है ना, आसाम बोर्ड के केस में 2014, 17 अलग अलग ईयर्स में ये क्वेश्चन बार बार आया है. ठीक है ना, कभी हेनरीज लॉ के बारे में पूछते थे, कभी लिमिटेशंस के बारे में, कभी एप्लीकेशंस के बारे में, कभी दो अलग अलग गैसेस को दे देंगे और तुम्हें पूछा जाता है कि किसका सॉल्युबिलिटी किससे ज़्यादा है. ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ें होते रहता है. ठीक है, ओके. So this is all about Henry's law, solubility, factors affecting solubility. All right. In the next lecture, we will be learning about Rawls law. ठीक है ना, ये Rawls law क्या होता है? ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, ये अगले वीडियो में अपन सीखेंगे. So this is it for today. See you in the next lecture. चलो, bye bye.